A very good evening to one and all. We have all seen that businesses are gearing up towards better opportunities, new norms, and a renowned outlook towards marketing. Where we observe the large scale businesses have already imbibed a need of change in the terms of pandemic. So yes, here we are discussing for local businesses. Hello everyone. I, Reshma Roida, welcome you all to the fourth Digital Marketing Day. This is the fourth consecutive year that iVipnan is celebrating Digital Marketing Day. I'm representing iVipnan Digital Marketing Services. Started in 2014, iVipnan is the pioneer of digital marketing training and consultation in southern Gujarat. For over the years, iVipnan has managed to provide extensive digital marketing solutions worldwide. The agency helps businesses to grow sustainably on a global. With unsteady COVID regulations and downward facing business opportunities, it is the time for local business owners to think outside the box and reinvent their marketing strategies, not only in terms of social media, but search marketing. Because search marketing plays a very vital role for all types of businesses, and to understand how local businesses can do this, we are here with the topic search marketing for local businesses in our panel discussion. As we begin the event, I would like to thank the supporters of the event. Brand Expresso, Canada-based brand and a business development consultancy. SR Luthra Institute of Management, Surat, MBA college affiliated with Sarvajanik University. BV Patel Institute of Commerce and Management affiliated with Uka Tarsaria University, Bardoli. IceDeal, the eyewear store with 14 outlets overall Gujarat, an exclusive e-commerce platform that you can visit at icedeal.com. Suflam Technologies, an Ahmedabad-based IT company that helps global businesses transform digitally. Sumiro Dental Clinic, Surat-based multinational dental hospital, the largest of its kind of dental hospital in Surat. So guys, before we proceed towards the panel discussion, I have a few instructions for all of you. First of all, I request everyone to please keep their mic muted during the session. Also, if you have any questions regarding the discussion or going on the discussion, please note them down. Ask later in the Q&A session. And if we miss any question, you can leave it in the comment box only. Also, stay connected with us till the end for receiving the participation certificate. It will be given to those who are connected with us till the end. Not only that, they will receive an exclusive digital marketing FAQs ebook copy answered by August Penalis. So don't miss that too. Now, I would like to introduce our panelist of the day. Our first panelist is Mr. Arbab Usmani. He is the CEO of Upskill, a new generation learning startup. He also helps in telling unique stories in fastest growing digital and influencer marketing space in India. He is a key mentor at IIM Kashipur, and his expertise lies in educating individuals and professionals. He imparts training in SEO and SEM, analytics, social media, content strategy, neuromarketing, growth hacking, and marketing strategy. We welcome you, sir. Thank you very much. Thank you very much for having me in the show. Our second panelist is Mr. Vinay Toshniwal. He is a well-known name in digital marketing space, known specially for his expertise and skill in Google My Business. He is renowned specialist in fixing suspended business listing on Google My Business internationally. Vinay has helped innumerable local business owners across the world in increasing their business presence online through Google My Business. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Our third panelist is Mr. Amit Panchal. He is digital marketing consultant with 10 plus years of experience in social media marketing, SEO, content marketing, and reputation management. He is known for creating exceptional branding and marketing solutions for various brands. He is also a mentor of GUSCE, Gujarat University Startup and Entrepreneurship Council, and incubator at Silver Oak College and invited faculty at EDI Gandhinagar. He was a part of Social Media Week events in India for Mumbai and Bangalore as a social media strategist. We welcome you, sir. Thank you, Resma. And
all the team members. Our panel moderator of the day is Mr. Bhautik Sheth. He is the founder of iVipnan Digital Marketing Services, started in 2014 in Surat with more than 15 years of experience. He has trained more than 60,000 people for digital marketing through seminars, webinars, workshops, and training programs on digital marketing at national and international level. Bhautik Sheth has been rendering his services as a digital marketing consultant to SMEs as well as large-scale businesses, service industry, and the startups. He has worked with 80 plus companies as a consultant. He received many awards that shows his result-oriented leadership and commitment for his work. We welcome you too, sir. Thank you so much, Reshma, for the wonderful introduction of all the August panelist member, and also wonderful explanation that what we have done all these last 4 years in Digital Marketing Day. And yes, on behalf of my team at iVipnan, I once again welcome Amit, Vinay, and Arbab. So guys, welcome. And now we have known that what exactly we are going to do, and the topic is very well known to everybody. I think I need to go ahead with the questions. At the same time, I request all the participants that we are going to use. So this is one instruction that I think as a panel moderator I need to give. We are going to use the languages Hindi and English ताकि सबको अच्छे से समझ आए. दूसरी चीज, आप अपना जो लेआउट है वो थोड़ा चेंज करके या तो स्पॉटलाइट कर दीजिए या तो साइड बार कर दीजिए ताकि जो भी स्पीकर है आप उनको देख पाएंगे. तो मैं एडमिन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्पीकर बोलते हैं आप उनको प्लीज पिन कर दे ताकि जो भी हमारे अटेंडीज है they can come to know that exactly who is speaking, because there are almost 200 people and I'm happy to share that there are 450 plus registrations. लेकिन as we know जितने होते हैं वो अभी हमारे सामने है. So yes, let's start with the flow. So हम शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ, because the topic is search marketing for local businesses. तो मैं अरबाब आपसे जानना चाहूंगा ब्रीफ में इस टॉपिक को लेकर आपका क्या विचार है या आपका क्या अनुभव इतने सालों से रहा है. व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर इन ब्रीफ. सो let's talk about this topic, and this topic मतलब कि ये बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती इस टॉपिक के बारे में. We talk about search engine optimization on generic on all those things, but local business के बारे में बात नहीं की जाती है. मेरा एक्सपीरियंस काफी रहा है इस एरिया में, because I work with real estate companies, I work with that online pharmacies on local area and all those things, right? So मेरा एक्सपीरियंस काफी रहा है throughout the year. लोकल बिजनेस के ऊपर में मेरा काफी ज्यादा रहा. I work with restaurants, I work with the local businesses as well, right? So before moving toward थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको थोड़ा सा मैं कुछ डेटा वाइज बताना चाहता हूँ, क्योंकि वी आर अ डिजिटल मार्केटर एंड वी टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट डेटा. सो डेटा इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट? सो अगर आप आज से 2-3 साल पहले का डेटा देखोगे, 2000 प्री कोविड एरिया का देखोगे, तो उसके अगर हम लोग उसकी बात करें तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो 46% ऑफ जो गूगल में सारे के सारे सर्चेस होते हैं ना, वो उसमें से 46% सर्चेस इज एक्चुअली मतलब कि ऐसी चीजों की होती हैं जो लोकल इंफॉर्मेशन को खोजती है, या तो रेस्टोरेंट या कोई लोकल प्लम्बर का स्टोर या लोकल डेंटिस्ट या डॉक्टर का या हॉस्पिटल. ये 46% गूगल के जो सर्चेस होते हैं वो तुम्हारे होते हैं यहाँ से. यार ये HubSpot का डेटा है. HubSpot आई एम श्योर कि आप लोग सब जानते होंगे, मार्केटिंग की काफी बड़ी एजेंसी है और भी बहुत सारी चीजें करते रहते ही है. और द सेकंड डेटा इज कि 88% जो वो लोकल सर्चेस होते हैं ना वो मोबाइल डिवाइस पे होते हैं. तो इसीलिए गूगल बहुत ज्यादा मोबाइल फर्स्ट की तरफ में भाग रहा है, क्योंकि मोबाइल की तरफ में लॉट ऑफ सर्चेस होते हैं. ऐसे गूगल का कहना है कि 60% सर्चेस मोबाइल पे होते हैं उसके टोटल सर्चेस के, बट लोकल सर्चेस के 88 ऑलमोस्ट 90% जो होते हैं वो मोबाइल के ऊपर में होते हैं, राइट? इसके बाद में एक और डेटा है जिसके बारे में ये डेटा जो है ये HubSpot का खुद का डेटा. ये कहता है कि 72% ऑफ कस्टमर जो लोकल सर्च किए हैं वो 24 घंटे के अंदर में, राइट, वहां पे वो विजिट करते हैं, जो भी किए हैं
राइट, और ये विद इन 5 माइल रेडियस के अंदर का ही ये सर्च करते हैं। और ये तो हो गया, ये तो आपको छोटा मोटा डेटा हो गया, ये चीज है। अब फॉरेस्टर करके एक कंपनी है जो कि फोरकास्ट करती है, मार्केट को फोरकास्ट करती है। उसका कहना है कि भाई बाय 2021 मोबाइल डिवाइस जो है ना 1.4 ट्रिलियन डॉलर का लोकल सेल को इन्फ्लुएंस करेगा। ध्यान रखिएगा, ये T for ट्रिलियन है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो लोकल जो सेल होता है वो इन्फ्लुएंस होगा मोबाइल डिवाइसेस से। और मोबाइल डिवाइसेस का मतलब है कि आपका मोस्टली इसमें मानिए कि गूगल के थ्रू ही जो सर्च के रिजल्ट से आते हैं उसके ऊपर में ही ये होगा। तो 1.4 ट्रिलियन इज अ वेरी बिग नंबर फॉर दैट, राइट। नाउ अगर हम लोग बात करें कि अब बहुत सारे पॉइंट आता है कि भाई हमारा दुकान तो ऑनलाइन है नहीं, हमारा दुकान तो ऑफलाइन, जैसे कि डॉक्टर की दुकान है या लेट्स से कोई रिटेल शॉप है या कोई आपका लेट्स से कोई आपका सैलून है, राइट। सो 78%, राइट, 78% जो लोकेशन बेस्ड मोबाइल सर्चेस होता है वो ऑफलाइन परचेस में कन्वर्ट होता है। अगर वो लोग सर्च कर रहे हैं तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में कन्वर्ट करते हैं। और ये एसईओ ट्राइब्यूनल का डाटा है। एसईओ ट्राइब्यूनल एक बहुत बड़ा एसईओ के लिए बहुत बड़ा वो डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट। और 18% ऑफ लोकल जो स्मार्टफोन के अंदर में सर्च होते हैं उसमें एक दिन के अंदर में सेल होता है। और 7% के अगर हम लोग बात करें और नॉन लोकल की बात करें तो 7% उसका कन्वर्जन रेट है। ये गूगल का खुद का डेटा है। थिंक विद गूगल का एक अलग से डेटा वो चलाता है, उसका डेटा। नाउ इन सारे पॉइंट का जो मैंने इतने सारे पॉइंट बोले, इतने डेटा बोले, इतने सारे डेटा पॉइंट मैंने आपको गिनाए जो कि काफी लिजिट और काफी रिलायबल सोर्सेस आते हैं, ये हमें एक ही तरफ पॉइंट करते हैं कि लोकल सर्चेस एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड वाली चीज है। लोग कर रहे हैं सर्च, बट देर इज नो वन टू, मतलब कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस लोकल सर्चेस को मैनेज कर रहे हैं। नो वन तो बोलना गलत ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही ऐसा एरिया जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और जिसके बारे में हमें काम भी करना चाहिए जिसके अंदर में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं सिर्फ डेटा आप लोगों को कुछ बताना चाहता था कि डेटा से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, राइट। Yes, thank you so much, Arbab, for your opening statement. And Arbab has said it very clearly, and he has mentioned it very clearly that what exactly the data is all about जब आप local search marketing की बात करते हैं। And जो एक eye popping data था जो local search mobile पर होता है, that is 88%. So I think that speaks a lot, and we all understand this because we all use mobile a lot. So thank you so much, Arbab, for your opening statement, and thank you for sharing this data. Now, let me move to Amit. So Amit, your opening statement for this topic, please. So, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डेटा और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी वो अरबाब जी ने शेयर की, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी और सब लोगों ने नोट डाउन किया होगा ये पॉइंट्स। मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये मुझे याद है कि पिछले 2 साल के अंदर जो नियर मी, अभी सब लोग यूज करते हैं वर्ड लाइक कि शॉप, मैक्सिकन रेस्टोरेंट नियर मी, क्लोज बाय, है ना। सो जो नियर मी, क्लोज बाय, ये जो ऐसी जो क्वेरीज थी उसका ग्रोथ 900% है। 900% से ज्यादा ऐसी क्वेरीज का ग्रोथ हुआ है पिछले 2 सालों में। तो आप उसके ऊपर से सोच सकते हो कि अगर लोकल बिजनेस की बात करें, है ना, सर्च मार्केटिंग की अगर बात करें तो कितना ज्यादा अभी मार्केट है और हम लोग उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। और भौतिक जी ने हम जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ही ये सेशन ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस टॉपिक पर बहुत कम लोग बात करते हैं, है ना। सो मैं सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि अगर लोकल बिजनेस की बात कर रहे हो तो जब आप अपने वेबसाइट के लिए कुछ कीवर्ड्स ऐसे कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो, तब आप जो लोकेशन है आपका, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड भी आप अपनी वेबसाइट पर टारगेट कर सकते हो। और आपकी जो लोकल बिजनेस प्रोफाइल है उसको आप कई सारे लोगों ने खुद की प्रोफाइल बना के रख दी होती है, वो लोग उसमें देखने भी नहीं जाते कि कितने लोग कॉल करते हैं, कितने लोग ने डायरेक्शन के लिए पूछा है, कितने लोगों ने इंक्वायरी डाली हुई है। विनय तोशनीवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं लोकल बिजनेस प्रोफाइल के लिए ज्यादातर कुछ नहीं बोलूंगा,
बट यस, मैं ये बोलूंगा कि अगर एसईओ और सोशल मीडिया आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो आपका लोकल बिजनेस जो है वो अपने आप इंप्रूव होगा, अपने आप आपके लोकल बिजनेस की विजिबिलिटी इंटरनेट पर बढ़ेगी। बस आपको प्रॉपर तरीके से जाना है। वो आज हम लोग सब, आरबब जी, मैं, तोशनीवाल, ये जो विनय जी है और भौतिक जी, हम लोग सब यही पॉइंट्स पर आज डिस्कस करने वाले हैं। और आई थिंक आफ्टर दिस सेशन आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या आप नहीं कर रहे थे और अभी आपको क्या करना चाहिए, है ना। थैंक यू भौतिक जी एंड ऑल द टीम मेंबर्स। थैंक यू सो मच अमित फॉर योर ओपनिंग स्टेटमेंट। और यस, अमित ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है और उन्होंने कहा है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। So this is very important, right? So whenever you do local search marketing, you have to focus a lot on the location-based keyword. Before I go to Vinay for his opening statement, मैं सबसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने कभी SEO सुना होगा लेकिन किया नहीं होगा। तो सिंपली जब आप सर्च इंजन यूज करते हैं तो एक सिटी में जैसे आप रहते हैं, मे बी यू आर फ्रॉम सूरत, यू आर फ्रॉम अहमदाबाद, यू आर फ्रॉम दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बैंगलोर, आप कहाँ पर भी होते हो, तो यू कंटिन्यूसली यूज गूगल टू सर्च सो मेनी थिंग्स लोकली। तो उसमें एक लोकल बिजनेस क्या एडवांटेज ले सकता है बियॉन्ड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करें। और जब ये बात आती है, मैप्स की बात आती है, गूगल माई बिजनेस की बात आती है, और यहाँ पर विनय जी से बढ़िया कोई आपको नहीं बता सकता। तो अब मैं ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए जाना चाहूंगा विनय जी के पास। सो विनय, प्लीज आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट शेयर करिए हमारे साथ। श्योर, थैंक यू। जैसे जो टॉपिक है सर्च मार्केटिंग फॉर लोकल बिजनेस, थोड़ा सा उसको ट्विक करना चाहूँगा। इट वुड बी सर्च ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल बिजनेस। मार्केटिंग का अरबाब सर है, अमित जी हैं, वो लोग बता देंगे। मेरे तरफ जब आता है वो गूगल माई बिजनेस ही है। इट इज इन माई ब्लड। 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इन एंड आउट, आई नो इट एवरीथिंग। तो एज आई नो कि यहाँ पे इतने सारी जनता है, आई वुड लाइक टू ब्रीफ कि व्हाट गूगल माई बिजनेस इज। तो आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, यू विल सर्च इन गूगल फर्स्ट, एंड इफ यू वांट टू बाय दैट लोकली, then obviously you will get into that 3 map का रिजल्ट। जो 3 मैप रिजल्ट आता है आप उसी में जाते हो, आप रिव्यू देखते हो, सब चीज देख करके फिर उनको कॉल और उनको विजिट करते हो। तो ये जो मैप का रिजल्ट आता है, दैट इज आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन ऑफ गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस में आप जब रजिस्टर करते हो तो ये आपका मैप का रिजल्ट आता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर योरसेल्फ अ कस्टमर, आप हर चीज को लेकर के आप गूगल में आप सर्च करते हो एंड यू सी योर गूगल मैप रिजल्ट एंड वहां से आप परचेज करते हो। नाउ ये जो गूगल मैप के रिजल्ट है, इतने सारे रिजल्ट है, ऑलमोस्ट आप कुछ भी सर्च करोगे यू विल गेट फर्स्ट 3 रिजल्ट, एंड जब आप मोर क्लिक करोगे यू विल गेट अराउंड 50s 100 जितने भी लिस्टिंग है यू विल गेट इट। फर्स्ट 3 लिस्टिंग में आना इज दैट मोर इम्पोर्टेंट, और वहीं से आपकी जो जर्नी शुरू होती है लीड जनरेशन की, वहीं से आपकी शुरू होती है। तो ये जो फर्स्ट 3 रिजल्ट जब आते हो, उसी के बारे में आई एम देयर टू टेल यू कि आप ये क्या कर सकते हो जो कि आप फर्स्ट 3 में आ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट गूगल माई बिजनेस लोकल ऑप्टिमाइजेशन। ओवर टू यू भौतिक। थैंक यू सो मच विनय। एंड यस, क्योंकि जब आप गूगल माई बिजनेस की बात करते हो तो बेशक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, जैसे वेरिफिकेशन से लेकर, फोन नंबर से लेकर, एड्रेस चेंज से लेकर, लोकेशन को डिसेबल करके कहीं और जगह पे शिफ्ट होने से लेकर, आई थिंक देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस एंड आई अश्योर यू दैट इफ वी आर गोइंग टू हैव एन एक्सक्लूसिव सेशन फॉर गूगल माई बिजनेस, वो भी मुझे लगता है 1.5 घंटे के अंदर कभी खत्म नहीं होता। बट यस, एज विनय सेड, we have combined 2 different topics here. One is an optimization and another is the marketing. So we are going to put a little bit focus on the paid ads also. Google ads के ऊपर भी हम focus करेंगे, और इतना ही नहीं guys, we are going to also put a little bit focus on the role of social media in SEO. So yes, if you have any question, आप chat box के अंदर रखते जाइए, select question को हम last में लेंगे, और जो हमारे से छूट जाएगा, as रेशमा said, हम उसको लास्ट में कंपाइल करके जितने भी हमारे ऑगस्ट स्पीकर्स हैं उनको हम दे देंगे, उनसे आंसर कलेक्ट करेंगे
और कंपाइलेशन आपको बाद में हम ईमेल से भेज देंगे। सो नाउ हम एक फॉर्मल पैनल डिस्कशन को ओपन करते हैं। हमें ओपनिंग स्टेटमेंट्स तीनों स्पीकर्स के मिल चुके हैं। सो मैं जाना चाहूंगा अरबाब के पास फिर से एक बार। सो अरबाब, आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं और आप एसईओ में बहुत सालों से काम कर रहे हो। सो वी नो दैट वी टॉक अ लॉट अबाउट बैकलिंक्स एंड इनबाउंड लिंक जनरेशन। इसकी बात हम कई बार करते रहते हैं, बट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू, आपके टॉप ऑन पेज एसईओ पॉइंट्स क्या रहेंगे? अगर आप कोई भी वेबसाइट को ले ले, लोकल मार्केट को ही अगर टारगेट करना है, सो योर टॉप टेक ऑन पेज पार्ट फॉर द टारगेटिंग ऑफ द लोकल मार्केट ओनली। ठीक है, अरबाब सो ठीक है। सो I will not only talk about marketing, I will talk about, sorry, not only about optimization, I will also talk about marketing as well, because they both are integrated, right? So local businesses देखो दो तरह का हो सकता है। either people can buy directly and you deliver to them, right? जो भी जैसे सब्जी स्टोर है आपका, या ये हो सकता है कि लीड जनरेशन काइंड ऑफ बिजनेस हो सकता है, जहां पे आपको फोन नंबर, जैसे डॉक्टर वगैरह हुआ, लीड जनरेशन काइंड ऑफ बिजनेस हो वहां पे, या डायरेक्टली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी सेट कर सकते हो, वहां से हो सकता है। ये दो तरह का हो सकता है। देखो, इफ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग पार्ट, तो बहुत बार हम लोग एसईओ के जो लोग है ना, वो मार्केटिंग पार्ट भूल जाते हैं। हम लोग को लगता है कि कुछ रोबोट वगैरह है और हम लोग ऑप्टिमाइज कर देते हैं पेजेस को। नहीं, हमारे एक रूल्स बना हुआ कि इस रूल में ये देंगे वो देंगे, लेकिन as an SEO we need to first think about marketing, because our job is to take people, bring people to our page, but हमारा काम वहां पे लाने से खत्म नहीं हो जाएगा। 1000 पेज आपके पेज में लोग आ गए और एक भी लोग कन्वर्ट नहीं हुए, rather than 100 लोग आपके पेज में आ गए और 2 लोग कन्वर्ट हो गए, तो 100 लोग का आना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ट्रैफिक विच कन्वर्ट्स, तो आपको ऑन पेज में सबसे पहले मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग के अंदर में आप क्या काम कर सकते हो? एक तो सबसे पहली बात कि आपके पास में जो भी जनता आएगा उसको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि उसके अंदर में कुछ कुछ डर रहेगा, मतलब कुछ कुछ उसको डर रहता है, कहीं कुछ पैसा नहीं खा जाए, स्कैम ना कर दे, इस टाइप का डर रहता है। उस डर को आप कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे मिटा सकते हो? उसको दो तरीके से मिटा सकते हो। एक तो होता कम्युनिकेशन, आप कर रहे हो, बता रहे हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आपने कुछ सोशल प्रूफ दे दिया। सोशल प्रूफ होता है नंबर्स, जैसे कि टेस्टिमोनियल्स कैन बी सोशल प्रूफ, कि वहां पे लोगों को ट्रस्ट बढ़ाना है, या आप किसी से टाई अप किए हो, या किसी मीडिया हाउस में आपका नाम आया है, या कहीं पे आया, या आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है कि आप कोई ऐसे सर्टिफाइड हो चीजों का, तो ये सब ट्रस्ट बढ़ाने वाली बातें होती हैं। या मे बी कोई इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप उसको ट्रस्ट बढ़ा रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि ट्रैफिक मैटर नहीं करता, ट्रैफिक विच कन्वर्ट्स मैटर करता है। तो विच कन्वर्ट्स के लिए ऑन पेज में आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने सारे पेज में काम करना पड़ेगा, वो एक पॉइंट है। अब आते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। तो ऑप्टिमाइजेशन में जनरल अगर एसईओ की बात करें तो उसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन होता है? तो एक तो होता है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। मेटा टैग में आता है कि भाई आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया, अगेन ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया। कीवर्ड रिसर्च, लेट्स से अभी अगर मान लेते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत, राइट, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत, ठीक है। नाउ ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड जो नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन उसके हिसाब से आपके टाइटल में होना चाहिए, लेकिन टाइटल में सिर्फ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, टाइटल शुड बी कन्विंसिंग। आप जब भी गूगल करते हो तो आप अंडरस्टैंड करो, दिस इज द, मतलब ऊपर में तो ऐड आता है गूगल का, लेकिन जो आपका सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन का भी जो पार्ट होता है ना, वो भी एक छोटा सा ऐड कॉपी है आपके लिए। वो कन्विंस करना चाहिए यूजर को, तो खाली कीवर्ड डाल दोगे तो नहीं कन्विंस करेगा, ठीक है। तो आपको टाइटल 70 कैरेक्टर के अंदर में कीवर्ड के साथ में कन्विंसिंग वाला होना चाहिए। सेम मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल एक रैंकिंग फैक्टर है, सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। मेटा डिस्क्रिप्शन इज नॉट अ रैंकिंग फैक्टर सिंस 2009, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन कैन इन्फ्लुएंस CTR, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि 1000 लोग आए और आपके वेबसाइट में कितने लोगों ने क्लिक किया, इसको CTR बोलते हैं। अब जैसे कि आपने 10 पेज आता है, 10 पेज में कोई जरूरी नहीं कि पहला पेज ही सबसे ज्यादा क्लिक ले जाए। जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ज्यादा ये करेगा, वो ज्यादा क्लिक, कभी कभी 5वां नंबर भी ले जाता है, कभी कभी ज्यादा क्लिक ले जाता है, जो फर्स्ट फोल्ड में जाता है वो ज्यादा ले जाता है। तो CTR इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कि सर्च करके डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। वी सी दैट टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। सो दीज टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन URL के अंदर में आपका कीवर्ड होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और
और कीवर्ड की कुछ डेंसिटी होती है, ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, बहुत सारा मिथ है कि डेंसिटी है, बट 2-3 बार तो एटलीस्ट रिपीट होनी चाहिए, आपका जो भी कीवर्ड है 2-3 बार आपका रिपीट होना चाहिए। लेकिन लोकल एसईओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम लोकेशन, याद रखिएगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। केशव थोड़ा सा आप म्यूट कीजिएगा अपने आप को, आपकी आवाज आ रही पीछे से। ठीक है, तो दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लोकल सूरत, राइट, सूरत के अंदर में चीजें, राइट। तो आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें एक चीज जरूर होना चाहिए, वो होता है नैप। नैप मतलब होता है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके लोग हमेशा, ये जो नैप होता है ना, नेम, एड्रेस और आपका फोन नंबर, ये नैप हमेशा क्या होता है कि आगे जाकर आप कहीं भी बैकलिंक बनाओगे ना, तो ये वहां से अपने आपका एक सिमिलरिटी बनाएगा, सिमिलरिटी बनाने के बाद में उसी के हिसाब से ऑथोरिटी बनती है। तो नैप बहुत जरूरी होता है, आपका जो लैंडिंग पेज है जिसमें नेम, एड्रेस एंड ये होता है, और ऑफ कोर्स अगर लीड वाला बिजनेस है तो लीड कलेक्ट करने के लिए एक फॉर्म बहुत जरूरी होता है। सो आई थिंक दीज पॉइंट्स शुड बी देयर इन ऑन पेज एसईओ, आई थिंक सो। ग्रेट, यस, ऐप के बारे में आपने बताया अरबाब, थैंक यू सो मच, बिकॉज यस, इवन we understand the role of title is so important, and as you said, meta description is quite important to increase your CTR, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को टॉप पर ला भी देते हैं, लेकिन अगर वहां पर कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो वेबसाइट विजिट नहीं आएगा, एंड देन wherever you want them to navigate वो होगा नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसका एक्सप्लेनेशन किया है अरबाब, थैंक यू सो मच। सो आई मूव टू अमित। सो अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बिकॉज नाउ दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक। तो जैसे आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो बट यू वांट पीपल टू कम टू योर वेबसाइट, तो कई बार हम देखते हैं जब हम एनालिटिक्स भी ओपन करते हैं, सो वी सी कि आपका ट्रैफिक अलग अलग जगहों से भी आ रहा है, कई बार चाइना का ट्रैफिक आता है, पाकिस्तान से भी ट्रैफिक आता है, जो इररिलेवेंट होता है, बाउंस रेट आपका ऑलमोस्ट 100% भी करता है। लेकिन सिर्फ अगर आप एक लोकल मार्केट में काम कर रहे हो and you are not at all focusing on any other part of even your state, तो फिर ट्रैफिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? So over to you, अमित। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है भौतिक जी आपने। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगा। ट्रैफिक की आपने बात की, आपकी वेबसाइट पर अगर लेट से कोई एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हमें ऑप्टिमाइज करना है, ट्रैफिक लाना है, तो हम उसको लिमिट नहीं कर सकते कि भाई मुझे खाली अहमदाबाद से ही ट्रैफिक चाहिए। आपको यूएस से भी ट्रैफिक आएगा, आपको थाईलैंड से भी आएगा, बैंकॉक से भी, हर जगह से आएगा, है ना। बट रिलेवेंट ट्रैफिक आपको कहां से लाना है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं आपको, तो क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने जब आपने चांस दिया मुझे इससे पहले जब बोलने का, तब भी मैंने बोला, तब मैंने ये पॉइंट किया था कि आप कीवर्ड के साथ में आपका जो लोकेशन है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि आप फूड डिलीवरी ऐप हो तो फूड डिलीवरी इन अहमदाबाद, या फ्लोरिस्ट इन अहमदाबाद, या अगर आप डेंटिस्ट हो और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट या लोकल बिजनेस लिस्टिंग या जो भी, तो आप इस तरीके का कीवर्ड यूज कर सकते हो। डेंटिस्ट इन अहमदाबाद, डेंटिस्ट इन स्पेसिफिक एरिया आप यूज कर सकते हो। अगर लोग ऐसे सर्च करना सीख गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि इवन खाली डेंटिस्ट लिखेंगे ना तो गूगल खुद सजेस्ट करेगा कि भाई उसके बारे में और सर्च क्वेरीज क्या है ना। सो लोग वो भी सर्च करते हैं। कई बार लोग, अभी वॉइस सर्च का जमाना है, तो लोग वॉइस सर्च भी करते हैं और वॉइस सर्च से भी ढूंढ के लोगों को जहां जाना होता है वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, जो उनको सर्च करना होता है वो सर्च करके देखते हैं। ये बात हुआ कि कीवर्ड के साथ में आप लोकेशन यूज कीजिए, और वैसे आप आपके रिलेवेंट लोगों तक पहुंच सकते हो अगर आपकी वेबसाइट है और कीवर्ड के साथ में लोकल आपने यूज किया हुआ है। तो दूसरा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि लोकल डायरेक्टरीज है, जैसे कि ये येल्प है, येलो पेजेस, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट है, ये सारी डायरेक्टरीज आप यूज कीजिए। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप अंदर ऐड कीजिए, लोकेशन यूज कीजिए, आप अपना जो बिजनेस का है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर तरीके से डालिए, है ना। कई कबार ऐसा होता है कि ये जो लोकल डायरेक्टरीज होती है ना, वो आधी अधूरी
भरी हुई होती है, कभी पूरी 100% नहीं होती, है ना। सो जितने भी लोग सुन रहे हैं और उनका लोकल बिजनेस अगर वो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो मैं ही उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ये मीटिंग खत्म हो, आप जाइए, चेक कीजिए अपना खुद का बिजनेस नाम, सर्च बिजनेस का जो नाम है वो आप गूगल में डालिए और देखिए गूगल आपको क्या क्या रिजल्ट दिखा रहा है, और वो हर एक लिंक पर जाके आप देखिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन वहां पे रखी हुई है या वो वेबसाइट के अंदर आपके बिजनेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो वेबसाइट लिंक रखी हुई है वो प्रॉपर है कि नहीं है ना। सो ये लोकल बिजनेस डायरेक्टरी की मैंने बात की। उसके बाद में मैं ये बोलना चाहूंगा, लोकल बिजनेस प्रोफाइल मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, बट अगेन विनय तोशनीवाल जी यहाँ पे है मौजूद, तो मैं वो पॉइंट स्किप करता हूँ। और मैं उससे आगे मैं ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए, लोकल से आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो। और उसमें भी दो चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। एक है, जब भी आप पोस्ट कर रहे हो तब आपको लोकेशन, जो सिटी से हो आप, जो एरिया से हो, उस एरिया का ऐड लोकेशन कीजिए वहां पे, ताकि जब भी कोई वो लोकेशन में कोई पोस्ट या ऐसे कुछ एक्सप्लोर कर रहा है तो आपकी पोस्ट उनको दिखाई देगी। दूसरा, जो सिटी से आप हो उस सिटी के हैशटैग आप यूज कीजिए उसके रिलेवेंट, और जैसे कि अगर फूड के बारे में तो अहमदाबाद फूड, या फोटोग्राफ्स के बारे में अगर देखिए तो अहमदाबाद पिक्चर्स, अहमदाबाद फोटोग्राफ्स, या तो अहमदाबाद डायरीज। तो काफी सारे और ऐसे हैशटैग्स है जो आपके सिटी के रिलेटेड है, जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, वो आप यूज कर सकते हो। और हाँ, बस मुझे ये बोलना था, ये जो पॉइंट्स थे वो आप ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हो तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। अगेन और चीज एक मैं ये बोलना चाहूंगा भौतिक जी, सब लोगों को ये होता है कि भाई हमें वेबसाइट पर विजिटर्स लाने हैं, बट विजिटर्स से पहले का एक फेज है, वो मैं यहाँ पे सबको बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग हैं वो सर्च कंसोल एक्सप्लोर ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता किस तरह की क्वेरीज है, लोग सर्च कंसोल में भी उस क्वेरी से मुझे इंप्रेशंस मिल रही है ना। सो जर्नी ये होती है, सबसे पहले इंप्रेशंस बढ़ती है, इंप्रेशंस आएगी तो लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे, आपकी वेबसाइट कोई देखेगा तो बंदे को इच्छा होगी कि ये 10 में से मैं कौन से रिजल्ट पर क्लिक करूं, और उसके बाद में बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा। और वेबसाइट पर आने के बाद में बस एक ये तरीका है यहाँ से नॉलेज शेयर करने का, और आपको ऐसा लग रहा है कि हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ नॉलेज शेयर नहीं कर रहे, तो आप म्यूट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं आपके साथ तो आप डेफिनेटली हमें म्यूट कीजिए। बट जो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत कम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपकी वेबसाइट को जब आप एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सर्च कंसोल में जाके वहां पे आपको आपकी इंप्रेशंस देखनी चाहिए टोटल, और इंप्रेशंस आपकी होगी उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, और ट्रैफिक कितना आ रहा है उसके बाद में जो अरबाब जी ने जो बोला ऑन पेज आपका सही होगा तो बंदा कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो वहां पे देख के भाग जाएगा और आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। सो अमित ने बहुत अच्छी बात की, और यस डेफिनेटली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अमित, जब एसईओ के बारे में मैं कुछ भी ट्रेनिंग कर देता हूँ या क्लाइंट से बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्च कंसोल, जो आपका गूगल सर्च कंसोल है GSC, that is very important to know the health of the website and to understand the performance of the website. I think you can go with the analytics. It's a deadly combination अगर आप यूज कर सकते हो तो, और बहुत ही अच्छा आपने उस पॉइंट को रेज कर दिया है। सो लेट मी गो टू विनय नाउ, क्योंकि हम वापस जब GMB की बात करें गूगल माई बिजनेस की, तो यहाँ पर एक विनय मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोकल बिजनेस ओनर्स है दे आर लिटरली अनअवेयर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ GMB, किस तरीके से उसको लिवरेज किया जाए। सो आप कुछ पॉइंट्स या सजेशन या टिप्स देना चाहेंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिससे उनके फोन कॉल्स थोड़े आ सके। वैसे तो आपने 3 पैक की बात करी भी है, लेकिन किस तरीके से वो अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फोन कॉल्स के लिए, मैसेजेस के लिए, या तो फिर अगर
डायरेक्शन मैप के अंदर जो डायरेक्शन है वहां से भी वो अपने लोकल बिजनेस पर आ सके. सो योर पॉइंट्स ऑन दैट, विनय. Okay. So before jumping into this, मैं आप लोग सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि I also cater US market. US में सर्विसेज हैं जैसे लॉकस्मिथ है, AC रिपेयर वाले हैं. इन लोग का अगर गूगल माई बिजनेस का मैप नहीं है तो उनका जीरो बिजनेस है. अगर उनका कोई कारण सस्पेंड हो जाता है मैप तो they don't get any calls, they don't get any business. So understand the importance of Google My Business. सबसे पहला है कि if you are starting your Google My Business, make sure हर एक चीज जो भी Google My Business डैशबोर्ड में है सारी चीजें आप उनको अपडेट करें. फर्स्ट थिंग आपको ये बताता हूँ कि गूगल माई बिजनेस डैशबोर्ड में आप जो भी चीज लिखते हो दैट इज ऑल लाइव. कहीं पे भी कुछ भी आप कीवर्ड भी लिखते हो इट इज लाइव. कहाँ से आपका सर्च वो उसको उठा ले आपको मालूम नहीं पड़ेगा एंड यू विल बी नंबर 1. सो मेक श्योर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल 100% एंड once that is done your level 1 is completed. उसमें you'll get a mileage. Second thing is citations. जैसे अरबाब सर ने और अमित जी ने बताया कि आप अपने लोकल जैसे आपके बिजनेसेस डायरेक्टरी होते हैं जस्ट डायल, सुलेखा, ये सब में देख करके आप अपना प्रोफाइल बनाइए. मेक श्योर यू हैव कंसिस्टेंसी. NAP इज नेम, एड्रेस, फोन नंबर. ये तीनों अगर कंसिस्टेंट है तब आपका लिस्टिंग अच्छे से रैंक करेगा. कहीं पे भी ये थोड़ा गड़बड़ हुआ योर लिस्टिंग इज इन डेंजर. सो मेक श्योर यू मेक NAP कंसिस्टेंट रहे. द थर्ड वन इज ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट. वेबसाइट इज अ फ्री इन गूगल माई बिजनेस. बहुत लोग नहीं जानते हैं. थोड़ा सा आप होम पेज, इन्फो, ये सब में नीचे स्क्रॉल करोगे तो you'll find something called as website. सब ऑटोमेशन है. वहां पे आपको खाली कंटेंट लिखना है. कंटेंट लिख करके मेक श्योर द कंटेंट इज ऑप्टिमाइज्ड. थोड़े से कीवर्ड्स लिख करके whatever the product you deal in, whatever the service you deal in, वहां पे आप लिख दीजिए तो वो that would be automatically आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा कीवर्ड के साथ. एंड द फोर्थ वन, ऐसे बहुत सारे हैं बट द टॉप things what I would like to say, the fourth one would be the reviews. Reviews not only in the sense of your SEO but also for the customers. आप समझिए किसी को आप सर्च कर रहे हो गूगल में, टॉप 3 रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट वाले के पास एक भी रिव्यू नहीं है, सेकंड वाले के पास 4.4 रेटिंग के रिव्यूज हैं, दैट इज 60 और 70. आप किसको कॉल करोगे? ऑब्वियसली द सेकंड लिस्टिंग. तो मेक श्योर कि आपकी लिस्टिंग की जो रिव्यूज है आप अपने कस्टमर से अपडेटेड डे टू डे रिव्यूज लेते जाएं. मेक श्योर टू मेंटेन योर रिव्यूज रेटिंग फ्रॉम 4.2 टू 4.9. 5 मालूम पड़ता है कि थोड़ा गड़बड़ है. 4.2 इज स्टैंडर्ड. 4.9 आप बहुत अच्छा है तो यू कैन मेंटेन 4.9. रिव्यूज में एक और बात है, जब भी आप कस्टमर से रिव्यू लेते हो मेक श्योर tell your customer to add a keyword and give review. वो जब keyword add करते हैं that is again your a part of your SEO. अगर if you have if you have a local salon, just tell them to type the best salon in this dash city. तो ये आपका एक कीवर्ड ऐड हो जाता है रिव्यू के कारण. एंड व्हेन यू मेक श्योर टू रिप्लाई ऑल योर कस्टमर्स. No matter even if they give 1 star, make sure you reply them decency in very decent way. And if it is a 5-star customer, make sure you reply them with again a keyword. आप अपना कीवर्ड फॉर्मेट फिक्स कर सकते हो. मैं 2-3 लाइन का आप उनको एक पहले थैंक यू दीजिए. सेकेंड लाइन में आप अपना एक जो आप सर्विस अभी कुछ नया प्रोवाइड कर रहे हो, मेक श्योर यू क्रिएट दैट एज अ कीवर्ड एंड पोस्ट इट. वो भी एक टाइप ऑफ SEO है. तो गूगल माई बिजनेस में आप जो कुछ डैशबोर्ड में जो कुछ आप लिखते हो दैट इज ऑल लाइव एंड दैट इज ऑल मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ SEO. तो ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है.
और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आप अगर ये 4 चीज करते हो, you will see a competition के depends on the competition, you will see your ranking on the first 3 pack. वंडरफुली एक्सप्लेन विनय, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा है, और जो आपने एक बहुत ही पते की बात करी है, बिकॉज सो मेनी पीपल दे लुक आफ्टर टू गेट दी फेक रिव्यूज, राइट, और अपने सर्कल में रिलेटिव्स में दोस्तों को बोल देते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड गाइस कि जब आप ये फेक रिव्यूज लेते हैं तो जो विजिटर है, जो कस्टमर है, वो डफर नहीं होता है. अ पर्सन कैन इजीली मेक इट आउट कि दिस इज समथिंग दैट इज फेक, एंड आई थिंक यू नीड टू फॉलो द एथिक्स आल्सो इन द बिजनेस. तो जेन्युइन सर्विस देंगे, जेन्युइन आपको रिव्यूज भी मिलेंगे, एंड यू हैव टू जस्ट पुश योर कस्टमर्स टू ऑप्टिमाइज. जैसे विनय ने कहा कि आप उसके कीवर्ड के साथ रिव्यू करवाइए. So I think it can help your business ethically as well. Thank you so much, Vinay. Wonderfully put forward. So second round के लिए I'll go first to Amit. Amit, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि so many times एक कंपनी की अलग अलग cities के अंदर उनके businesses होते हैं. So मान लीजिए कि right now we have this business in Surat. We may open an office in Baroda and then maybe Ahmedabad or Mumbai. So we have different identities at the different locations, but yeah, हमारी corporate website एक ही रहती है. So what is your point? What is your suggestion? How can we optimize the website to target local audience from each location? Do you suggest to create separate web pages for all the locations, या तो general pages से भी हम optimize कर सकते हैं? अमित. मैं नंबर 1 ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि सिटी वाइज आपके जो बिजनेस या जो ऑफिस है उसके लिए आपको लोकल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए. टेक्निकली डिटेल में आपको विनय जी बताएंगे यहाँ पे है, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. ये करना चाहिए आपको. लोकेशन वाइज आपको बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए. नंबर 2, आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करनी चाहिए सिटी वाइज, और जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स है उसको ध्यान में रख के, जैसे मैंने आगे भी बोला, सब गेम कीवर्ड का है, तो कीवर्ड प्लस जो आप लोकेशन है, लोकेशन वाले जो कीवर्ड है वो आप यूज कीजिए उसमें, और वो जो लैंडिंग पेज है उसमें यूज कीजिए. सो ये 2 चीज है वो आप ध्यान रख सकते हो. और पैरेलली सोशल प्रोफाइल्स, अगर आपको ऐसा है, अगर एक मेन ब्रांड है, अगर आप चाहते हो कि हर एक सिटी वाइज अलग अलग अकाउंट्स और प्रोफाइल्स, वो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हर एक जो ऑफिस है या जो फ्रेंचाइजी जो लोकेशन है उसके लिए अलग प्रोफाइल रखनी है, या सेम प्रोफाइल पर हर एक लोकेशन के अपडेट्स देने हैं. तो अगर अलग अलग कर रहे हो तो अलग अलग लोकेशन के लिए आपको अपडेट्स करना रहेगा, और एक स्टैंडर्ड उनको उनके ऊपर मेंटेन करना रहता है ना. सो लोकल बिजनेस प्रोफाइल है, लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करना है सिटी वाइज. सब डोमेन क्रिएट नहीं करना. सब डोमेन अगर करोगे तो दिक्कत ये रहेगी कि उस पर मेहनत बढ़ जाएगी और मेन डोमेन एज इट इज रहेगा. तो अगर सब फोल्डर कर रहे हो, एज ए सब फोल्डर सिटी वाइज सब फोल्डर लैंडिंग पेज बनाओ और उसको प्रमोट कीजिए, लोकेशन वाले कीवर्ड यूज कीजिए, और सोशल प्रोफाइल्स क्रिएट कीजिए आपके लोकेशन के हिसाब से, है ना. सो ये जो आपका जो सवाल है उसका ये जवाब है. ओके, सो टू द पॉइंट, उसमें कुछ ज्यादा बहुत कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है. तो जैसे आपने कहा कि भाई वी हैव विनय विथ अस, तो वो भी मैं जानना चाहूंगा विनय, आपका इस पे क्या मुद्दा रहेगा, और उसके साथ साथ एक और मैं अपना क्वेश्चन उसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा कि इसी तरीके से अलग अलग जगह से आपके लीड जनरेशन होते हैं गूगल माई बिजनेस के थ्रू, जब आप वहाँ पे उसके इनसाइट्स में वैसे भी देख सकते हैं दैट हाउ मेनी फोन कॉल्स यू गॉट और द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव रिसीव्ड. तो कई बार ये होता है कि इतने सारे लोकल बिजनेसेस के जो ये इंक्वायरीज आती है, चाहे जो अमित ने कहा कि अलग अलग सिटी के लैंडिंग पेजेस भी होते हैं, सो कोई ऐसा आप सजेशन देंगे कि आप उस लीड को प्रॉपरली मैनेज कर सके, कोई एक ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर आप सजेस्ट करना चाहें. तो मैं आपको 2 सवाल पूछ रहा हूँ. अमित का जो सवाल था उसका थोड़ा पोर्शन, और हाउ वी कैन मैनेज द लीड्स
द इंक्वायरीज जो भी हमें GMB से प्राप्त होता है, व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? ओके, तो फर्स्ट जो अमित जी ने जैसे बताया कि डिफरेंट लोकेशन शुड हैव डिफरेंट लैंडिंग पेजेस in the same website. So as per the Google guidelines, you should have different for different Google listings, you should have different landing pages. And वो जो different landing pages है, आप locally अपना उस हिसाब से optimize करें अपने website को. Now the second thing is कि आप कैसे आपको track करना है phone calls या messages. In Google My Business when I जब हम Google Ads की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें नंबर्स दिखाते हैं. द सेम थिंग इज विद गूगल माई बिजनेस. गूगल माई बिजनेस में जब आप इनसाइट्स में जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वीकली, मंथली और क्वार्टरली आपको कितने कॉल्स आए हैं. एंड गूगल वाज टेस्टिंग कॉल्स का एक टैब उन्होंने दिया था जहाँ पर फर्स्ट 5 डिजिट्स दिखाते थे एंड लास्ट 5 डिजिट्स नहीं दिखाते थे, सो दैट दे कैन secure the privacy of the caller. But अभी recently I am seeing कि उन्होंने वो टैब हटा दिया है. US में still the tab is there. So overall they have removed the calls tab. But again कितने phone calls आपको आ रहे हैं और कितने जन डायरेक्शन मांग रहे हैं ये आपको इन नंबर्स आपको इनसाइट से मालूम पड़ जाएगा. Now the third part is with the messages. मैसेजेस का एक टैब रहता है वेयर इन अगर आप गूगल माई बिजनेस में जाओगे एंड इफ यू हैव एक्सेस टू योर लोकेशन, वहाँ पे मैसेजेस में जा करके यू कैन सी कितने जन आपको मैसेजेस कर रहे हैं, कितने जन को आप वहीं पे रिप्लाई दोगे एंड द हिस्ट्री वुड बी देयर. आई थिंक द हिस्ट्री स्टेज देयर फॉर अराउंड 45 to 60 days. सारे मैसेजेस रहेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे डिलीट होते रहेंगे. और जब वो कोई मैसेजेस करेगा दे हैव अ फ्रीडम टू गिव नंबर ऑल्सो. तो आप जो भी मैसेजेस कर रहे हैं आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हो. सो देयर आर 2 थिंग्स. यस, यू कैन ट्रैक द नंबर ऑफ कॉल्स यू हैव गॉट. आई वोंट से दैट यू कैन ट्रैक योर conversion, but yes, you can track the number of calls you have got. Again, number of messages जितने आते हैं वो आपके गूगल डैशबोर्ड में मैसेजेस टैब में आपको दिख जाएंगे. So this is my reply to this. Perfect, wonderful. तो यस, आई थिंक दोनों क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया एंड आई होप जो भी ये सोचते हैं कि वी आर गेटिंग दिस मेनी थिंग्स, तो जैसे विनय ने कहा यू हैव दिस हिस्ट्री फॉर नेक्स्ट 45 डेज, तो आप उस दौरान आप उसका लेवरेज करें, उसके एडवांटेज लीजिए एंड जस्ट मेक श्योर दैट लोकल बिजनेस है तो आपको बहुत ज़्यादा उसका जो विंडो होता है उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो आपका क्लाइंट कहीं और भी जा सकता है. अरबाब, जैसे हम ऑप्टिमाइजेशन की तो कब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ा हम शिफ्ट होंगे यहाँ पर एड्स के ऊपर भी, क्योंकि हमें थोड़ा एड्स को भी कवर करना है. और उसके लिए भी कई बार आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि जो लोकल बिजनेस ओनर्स होते हैं दे आर लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन गूगल एड्स. दे फील कंफर्टेबल स्पेंडिंग मनी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. खास करके फेसबुक पर ये कारण आ जाता है कि एक बूस्ट पोस्ट होता है, आप एक इमेज बना दीजिए, बूस्ट पोस्ट करके 200-300 रुपये कर दीजिए, तो उनको बहुत ही साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कुछ किया. ऑल्दो दे आर नॉट क्लूलेस अबाउट द काइंड ऑफ KPIs एंड द काइंड ऑफ कन्वर्जन्स जो उनको देखना चाहिए. बट आपका क्या पॉइंट है, व्हाट इज योर टेक दैट व्हाई शुड दे गो फॉर गूगल एड्स एंड फ्रॉम वेयर दे कैन स्टार्ट विथ अगेन फॉर लोकल बिजनेसेस? सो इसके लिए हम लोग एक मार्केटिंग लेसन सीखते हैं और ये मार्केटिंग लेसन आता है जिसको आप लोग समझते हो कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और ये ऐसे ही कर रहा है, वो है सब्जी वाला, राइट? तो हम लोग आज एक एग्जांपल लेंगे और वी विल लर्न समथिंग, यू नो दैट वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम सब्जी वाला, राइट? सो देखो सब्जी वाला किस तरह से सब्जी बेचता है पहले इसको समझो. एक तरीका है कि आप घर पे बैठे हो एंड जब आप घर पे बैठे हो तो वहां पे आके वो आवाज लगाता है सब्जी ले लो, आपके कान में आवाज जाती है और आप जाके सब्जी खरीदते हो. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट कि एक सब्जी का मार्केट है जहां पे आप जाते हो, शाम में जाते हो, घूमते फिरते. आई एम श्योर आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जी जरूर ली होगी, राइट? तो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम जाते हैं और वहां पे जाके सब्जी मार्केट होता है, वहां पे जाके हम सब्जी खरीदते हैं, राइट? नाउ
एक बिजनेस जो है ये इन दो तरीके से रन कर सकता है। एक तरीका होता है कि भाई बिजनेस आपका प्रोडक्ट आपके यूजर तक पहुंचा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश मार्केटिंग बोलते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया की बात करते हो, कि सोशल मीडिया एड्स की बात करते हो, तो ये वही सब्जी वाले की तरह जो आपके घर के सामने आके बेचता है, आवाज लगाता है। यानी कि आपका वहां पे इंटरेस्ट तो होता है, क्योंकि इंटरेस्ट टारगेटिंग होता है, बट आपका इंटेंट नहीं होता। सोशल मीडिया में आप यू डू नॉट गो टू सोशल मीडिया टू बाय समथिंग। आप मजाक मस्ती मेरा तरह मीम देखने के लिए भी जाते होगे, राइट? तो आप सोशल मीडिया में जाते हो उस वजह से जाते हो, बट देयर इज समथिंग पीपल पुश एडवर्टीजमेंट, राइट? दैट इज कॉल्ड पुश मार्केटिंग। तो ये एक तरीका है भाई, आप खरीद सकते हो। और जो आप बात कर रहे हो सोशल मीडिया एड्स का, वो काम करता है, वहां तक लोग जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे अगर लोगों को कुछ खरीदना होता है तो वो चले जाते हैं लेट्स से अमेजन में या फ्लिपकार्ट में। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट एज अ प्लेटफॉर्म उनको खींचता है, वैसे ही गूगल एज अ प्लेटफॉर्म उनको खींचता है। इसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है? नाउ पुल मार्केटिंग में क्या होता है कि यूजर अब जब गूगल में सर्च होता है, तो गूगल में सर्चेस का भी डिवीजन है, किस तरह सर्च होता है। जैसे एक तरह का सर्च है इंफॉर्मेशन पाने के लिए, एक तरह का सर्च है जो ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब कुछ खरीदने के लिए सर्च होता है। और यहीं पे हमारा लोकल बिजनेस का भी एक उसका भी सब पार्ट है, लोकल बिजनेस। सो लोकल बिजनेस में आ जाता है। नाउ एक ऐसा एरिया, क्योंकि हम गूगल से सारा सवाल करते हैं, राइट? वहां पे लिस्टिंग आती है जहां पे आप रैंक नहीं कर सकते हो, बट वहां पे एक ऐसा यूजर जिसमें आपने देखा कि परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कितना ज्यादा है, वहां पे आप एडवर्टीजमेंट एक दिखा सकते हो और वहां पे एक एडवांटेज ले सकते हो। बहुत बड़ा एडवांटेज है वो। पिन पॉइंट पे, मतलब जो आपका पिन कोड है ना, उसके ऊपर में भी टारगेट करके एड चलाया जा सकता है। इसके अलावा दो तीन चीज और है जो गूगल एड्स में ज्यादा अच्छा है फेसबुक से, जैसे कि कॉल आउट एक्सटेंशन, राइट? तो गूगल फेसबुक एड्स में आई डोंट नो कि कॉल एक्सटेंशन उतना अच्छा काम करता है, क्योंकि मेरे लिए तो उतना नहीं काम किया, लेकिन गूगल में बड़ा अच्छा काम करता है कॉल आउट। लोकेशन एक्सटेंशन, कि वो गूगल माई बिजनेस के लोकेशन में चला गया। इनफैक्ट अभी के टाइम में अगर कोई आदमी गूगल मैप में सर्च कर रहा है, तो वहां पे भी आप एडवर्टीजमेंट दिखा के अपने आप को ऊपर रख सकते हो। सो इट्स अ पार्ट जहां पे कन्वर्जन एक बहुत बड़े लेवल पर सकता है, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली सीकिंग द इंफॉर्मेशन, दे हैव इंटरेस्ट, दे हैव इंटेंट, राइट? सो यहाँ पे कन्वर्जन काफी अच्छा तरीके से किया जा सकता है। और एक अगर आप गूगल एड्स नहीं यूज कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा एरिया यू आर मिसिंग, ठीक है? एक बहुत बड़ा एरिया यू आर मिसिंग, और क्योंकि गूगल का अपना ये चीज है। और गूगल एड मैं बताता हूँ भौतिक भाई क्यों मिस लोग नहीं करते हैं, क्योंकि गूगल एड चलाना बहुत डिफिकल्ट है। जो सीख गया गूगल एड चलाना, दुनिया कोई भी एड प्लेटफॉर्म चला लेगा। it's little bit difficult you need to learn that, right? So मैं यही आंसर दूंगा आपका कि गूगल एड्स एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन जगह है जहां पे आप लोग यूज नहीं कर रहे हो, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने लोकल बिजनेस के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से नरबाब आपने जो सब्जी वाले का एग्जांपल आपने कहा। एंड आई थिंक सागर ने क्वेश्चन पूछा था, सागर चौधरी, आपका क्वेश्चन का आंसर, आपने क्वेश्चन पूछा उसी दौरान अरबाब आपके क्वेश्चन के आंसर को ही दे रहे थे। और मैं आपकी बात से बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ दैट इट इज वेरी बेसिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रन गूगल एड्स। आपको वो भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपना बजट यूट्यूब एड्स के अंदर रखेंगे, अगर आप ई कॉमर्स और शॉपिंग एड्स करेंगे, शुड यू गो विद द सर्च एड्स और शुड यू गो विद द डिस्प्ले एड कैंपेन्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू हैव अ क्लैरिटी, आप अपने बजट को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और एक यस सर, मैं सागर के क्वेश्चन का एक और जवाब देना चाहता, क्योंकि आपने उठाया तो उन्होंने क्वेश्चन, हेलो सर, व्हिच वन इज द बेस्ट टू मार्केटिंग आवर प्रोडक्ट फ्रॉम गूगल और सोशल मीडिया? बाबू, इट डिपेंड्स। इसका आंसर है इट डिपेंड्स। देखो, सोशल मीडिया हैव वायरलिटी फैक्टर, गूगल डू नॉट हैव वायरलिटी फैक्टर। गूगल हैव एसईओ, सोशल मीडिया हैव ग्रुप्स, राइट? सो देयर आर एडवांटेज, देयर आर डिसएडवांटेज। नाउ अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो विजुअली अपीलिंग है, यानी कि जैसे कि मेकअप का सामान में या कपड़े हो गए, राइट, ये सोशल मीडिया में अच्छा काम करता है। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो विजुअली अपीलिंग नहीं बट जरूरत है, जैसे कि अगर आपका प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर है, तो वो सोशल मीडिया में शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना अच्छा परफॉर्म वो गूगल सर्च में करे या एडवर्टीजमेंट में करे। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, और दोनों प्लेटफॉर्म की अपनी खासियत है। किसी एक की तरफ मत भागना, भागना है तो सबके तरफ। अपना जो बोलता है ना, पुट योर एग्स इन एवरी बकेट, तो एक अगर खराब भी हो जाए दूसरी जगह तो काम करते रहेगा। तो हैव ओमनी चैनल अप्रोच फॉर योर प्रोडक्ट, बट स्लोली ऑफ कोर्स। हाँ भौतिक, प्लीज। Perfect, wonderful. So guys, before we move ahead to the last round of the questions, thank you so much. You guys are putting a lot of questions and I can see that बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे पहले भी बहुत क्वेश्चन आए थे। जस्ट कीप पुटिंग योर क्वेश्चंस बिकॉज एज आई सेड, मे बी आज हम उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंपाइल, और मैं
हमारे तीनों अगस्त पैनलिस्ट को बाद में भी परेशान करने वाला हूं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे आंसर सीखने हैं, जानने हैं। मैं भी बहुत सीख रहा हूँ साथ साथ में, और आप भी बहुत सीख रहे हैं। मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ गाइस, ऑल दिस 3 पीपल आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड वेरी नॉलेजेबल पीपल। ऑल्दो हम अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हम देखते रहते हैं। और यही कारण है कि जब इस तरह का कोई इवेंट होता है, सो विदाउट अ सेकंड थॉट आपको पता होता है कि इस टॉपिक के लिए आपको इन्हीं को यहाँ पर इनवाइट करना है। एंड यू नो व्हाट, हम सब लकी है कि इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक चीज, पूरे इंडिया में आज करीबन बहुत जगहों पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन जो शुरुआत में अमित ने कहा था, इतना टेक्निकल और टफ टॉपिक कोई लेता नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए भी आपको गट्स चाहिए और समझाने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। तो वी ऑल आर लकी इनफ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और हमें बहुत ही अच्छे से ये हमारे स्पीकर समझा रहे हैं। सो लेट अस मूव टू द फाइनल राउंड ऑफ Q&A. नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद विनय। विनय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है, देयर आर रिटेलर्स विद द मल्टीपल आउटलेट्स इन अ सेम सिटी, राइट? और इसी वजह से उनके बहुत सारे लोकेशंस गूगल माय बिजनेस पर हो जाते हैं, जो आपने भी रेकमेंड किया है। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑल द अकाउंट्स सो दैट एवरी आउटलेट गेट्स एन इक्वल एडवांटेज? और एक ऐड करूंगा, बिकॉज वी हैव दिस ऑप्शन टू पुट अ पोस्ट। तो पोस्ट को किस तरीके से अलग अलग अकाउंट से आपको करना चाहिए, या एक ही पोस्ट एक ही कंटेंट के साथ या उसी सिटी के अलग अलग लोकेशन के GMB अकाउंट से करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? सो आप बताइए, अलग अलग लोकेशंस के GMB एक ही सिटी में किस तरीके से हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, एडवांटेज भी ले सकते हैं? ओके, तो जब एक बिजनेस का मल्टीपल लोकेशन है, तो ऑब्वियसली उनके जो भी लोकेशंस है अलग अलग एड्रेस होंगे। तो जब अलग अलग एड्रेस होते हैं तो उनके अलग अलग लैंडिंग पेजेस होने चाहिए, और हर एक लैंडिंग पेज आपके उस जो लोकेशन है बिजनेस का, उसको टारगेट करते हुए उसके कीवर्ड और ऑप्टिमाइजेशन होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी सेम ब्रांड है, मल्टीपल लोकेशन है, मेक श्योर जो आपका नाम है इट शुड बी सेम। इट शुड बी सेम एक्सेप्ट इफ दे आर डीलर्स और होलसेलर्स, उनके लिए अलग है। जो टायर्स में होते हैं उनके लिए अलग है, यू कैन सी द गाइडलाइंस। तो द सेकेंड थिंग, भौतिक जी ने जो मुझे पूछा, इफ यू कैन एक बार आप पूछ लेंगे भौतिक जी। यस, तो सबसे पहले तो ये जो अलग अलग लोग पोस्ट के बारे में मैंने कहा कि अगर आप पोस्टिंग करते हैं तो कई बार होता है कि एक ही पोस्ट आप मान लीजिए 4 लोकेशन पर है, तो क्या उसी पोस्ट उसी कंटेंट को चारों लोकेशन पर रिपीट करना चाहिए, या आपके लिए कोई और अच्छा सजेशन है ताकि चारों लोकेशन का एडवांटेज हम ले सके अलोंग विद द कॉल टू एक्शन बटन? ओके, सो जो आपके गूगल माय बिजनेस डैशबोर्ड में पोस्ट करके एक है, जो यू कैन पोस्ट योर डेली अपडेट्स। सो अगर जैसे पिज़्ज़ा हट है, तो पिज़्ज़ा हट के अगर डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग अगर उनके चीज़ें जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, देन दे कैन हैव देयर सेपरेट पोस्ट। अगर उनका सिंगल ऑफर है, दे कैन हैव द सिंगल पोस्ट विथ, जब आप पोस्ट के साथ आप फोटो के साथ आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट शुड बी डिफरेंट, इट शुड नॉट बी सेम, कंटेंट शुड बी एज पर योर local listing optimization. If you are into some location, you can add the location and post it. And along with this, जो post and photos हैं, आप अगर रियल पोस्ट और फोटोज करते हो, रियल में क्लिक करके और वहीं पे पोस्ट करते हो, इट हैज एन एडेड एडवांटेज ऑफ योर लोकेशन टैगिंग। आप अलग से करके अगर लोकेशन टैग करोगे तो इट डजंट वर्क इन दिस era राइट नाउ। आप वहीं पे फोटो खींच के आप पोस्ट करते हो, इट हैज अ डिफरेंट रैंकिंग और एडवांटेज ऑल टुगेदर। एंड जो भी आप पोस्ट और करते हो, मेक श्योर यू ऐड योर CTA टू इट, सो दैट लोगों को, जैसे मैंने बोला गूगल माय बिजनेस डैशबोर्ड में आप जो भी चीज ऐड करते हो, एवरीथिंग इज लाइव, हर एक कीवर्ड इज लाइव, जो भी सर्च पैटर्न रहता है उस हिसाब से
आपके डैशबोर्ड से ले करके आपको रैंक किया जाता है. So I think it's clear about this. Your post can be similar and make sure your content is different. Second thing is make sure you do not take licensed photo and post it. Licensed photo अगर आप लेते हो, your listing is prone to suspension. बहुत सारी listing इस बीच में suspension हुई है, या फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, या फिर अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है. तो जो भी आपके फोटोज है, मेक श्योर वो लाइसेंस फ्री हो, या फिर आप अपना खुद क्लिक करके फोटोज पोस्ट करें. वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट. और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट विनय ने बताया. तो गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि एक ही फोटो भले रखिए, लेकिन उसके कंटेंट को जो आप वहां पे रखते हो उसको उस लोकेशन के हिसाब से आप रखिए, अलॉन्ग विद द लोकल कीवर्ड. और एक चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी कही, जो एक पिक्चर होता है जो आप मोबाइल से उस लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड देन यू आर अपलोडिंग दैट पोस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन. So normally what happens that if you are running a restaurant, or if you have a saloon or a mall, so there are so many people, they will go immediately. If they're going to love your place, they're going to give you 5 star. If they're not going to love your place, they're going to give extremely 1 star. So दो extreme ही देखते हैं. लेकिन कई बार हमें भी देखना होता है कि we as an owner of that particular restaurant or the सलून, कि हम खुद भी या हमारे टीम मेंबर्स भी जो लाइव पिक्चर्स क्लिक करके अगर ऑन द स्पॉट वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश कंटेंट, लाइव कंटेंट फ्रॉम द सेम प्लेस जो आप अपलोड करें. सो विनय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट हमारे साथ शेयर किया है. सो यहाँ से क्योंकि हम जाएंगे अब अरबाब के पास. अरबाब, मैं आपके साथ ये थोड़े 2 क्वेश्चन कंबाइन करना चाहूंगा. एक तो थोड़ा मुझे आपसे ये जानना है से लोकल जियो स्पेसिफिक कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए कैन देयर बी एनीथिंग रिलेटेड टू द बैकलिंक. वैसे तो अमित ने कहा है कि बैकलिंक्स आपकी आ सकती है, लेकिन फिर भी आप कुछ अपने पॉइंट्स मुझे बताएंगे. और उसके साथ जो धनराज ने क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो आप ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा के लिए लोकल बिजनेस को कुछ एडवांटेज मिले, उसके लिए आपके कोई टिप्स हो तो आप जरूर शेयर करें. अरबाब, ओवर टू यू. स्कीमा वाले की बात करें आगे, अगेन वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा होता है. अब जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में क्यों नॉट यूज प्रोडक्ट रिव्यू, क्योंकि मेडिसिन में आप 4 स्टार 2 स्टार थोड़ी कोई आदमी देगा, राइट. अब कैंसर का आदमी मरीज है और कैंसर का दवाई खा के मर गया तो बोलेगा 1 स्टार दे दिया, मेरा आदमी मर गया. तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू प्रमोट द मेडिसिन, राइट. अगर आपका लोकल मेडिसिन स्टोर है, वो टोटली डिपेंड करता है बिजनेस का. ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा होता है, प्रोडक्ट स्कीमा होता है. अगर आपका प्रोडक्ट है वहां पे कुछ लिस्टेड तो वो स्कीमा होता है. फिर उसके बाद एक आपका नॉलेज पैनल का स्कीमा होता है, जिसपे अगर कोई ब्रांड नेम आपका सर्च करता है तो वहां पे आपका फोन नंबर, सोशल मीडिया के एक्सटेंशन दिखाई दे देते हैं. ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपके ये तो नॉर्मल चीजें हैं, बट ये टोटली डिपेंड अपॉन बिजनेस होता है क्या है क्या नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम में ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा इज मोर देन एनफ होता है लोकल बिजनेस के लिए. ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा के अंदर में लेकिन जब आप दोगे तो लोकल एड्रेस वगैरह जरूर देना. नैप जो बोलते हैं, नैप जरूर देना. वो नैप आना जरूरी है, वो बहुत जरूरी होता है. नाउ नैप से ही हमारा बैकलिंक का भी चीजें होती है. देखो एक चीज, देखो गूगल तुमको क्यों रैंक करता है? गूगल तुमको बैकलिंक की वजह से नहीं रैंक करता है. गूगल तुमको इसलिए रैंक करता है क्योंकि गूगल को तुम्हारे ऊपर में एनफ ट्रस्ट है. तो लोकल बिजनेस के लिए यू नीड टू हैव एनफ ट्रस्ट प्लस सम बैकलिंक. अगर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप बैकलिंक ना भी बनाए अपने कीवर्ड के ऊपर में, फिर भी आप रैंक कर सकते हैं ऑन पेज के बेसिस पे और ट्रस्ट के बेसिस. अब ट्रस्ट कैसे बढ़ाओगे? तो आपके पेज में जो मैंने बोला नैप देने के लिए, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर देने के लिए, वो फोन नंबर विनय ने भी सेम बात बोला कि भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो 3 चीज है ना, जो एग्जैक्टली फोन नंबर है वो हर जगह जाएगा, एग्जैक्टली एड्रेस हर जगह जाएगा, एक वर्ड इधर से उधर नहीं होगा, और आपका एड्रेस जो एग्जैक्ट एड्रेस वो हर जगह जाएगा. तो जितने भी लोकल डायरेक्टरीज, देखो लोकल डायरेक्टरीज होते हैं, उसको अमित ने भी बोला था कि उसमें करने के लिए, बट लोकल डायरेक्टरीज अभी के टाइम में थोड़े से यू नो दैट थोड़े से नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, क्योंकि वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं. लोकल डायरेक्टरीज जो लोकल बिजनेस के डायरेक्टरीज हैं, तो वहां पे आपको 2-3 चीजें देखने की. ऐसे तो हम लोग अगर प्रोफेशनल लेवल पे करें तो हम लोग कुछ और करते हैं, बट मैं आप लोगों को 1-2 चीज बता दूं जो चीजें मतलब आप लोग जो देख के कर सकते हो. पहली चीज की कोई भी ऐसी लोकल डायरेक्टरीज के अंदर में, और मैं इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी लोकल डायरेक्टरीज के अंदर में आप बैकलिंक लगाओगे तो उसका डीए कम से कम 50 के ऊपर होना चाहिए.
जो डोमेन ऑथोरिटी को मॉज देता है, जो आप लोग को समझ में आता है, वो होना चाहिए। और उसका स्पैम स्कोर 15% से नीचे होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हो जाता है गड़बड़। वो स्पैम स्कोर और आपका ये दोनों चीजें देती हैं, राइट। तो ये सिंपल न्यूबी के लैंग्वेज में बात करते हैं, ये चीज होती है। नाउ एक होता है लोकल लिस्टिंग। देखो, लोकल डायरेक्टरीज इज अ डिफरेंट थिंग, लोकल लिस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। लोकल डायरेक्टरीज में एक डायरेक्टरी है, उसमें कैटेगरी आपने लिस्ट कर दिया। लोकल लिस्टिंग जैसे कि जस्ट डायल, ठीक है, जस्ट डायल में भी नैप जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी साइट्स है। अब इसमें भी होती है, इसमें भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी भौतिक का इंस्टीट्यूट है, तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो सिर्फ इंस्टीट्यूट को लिस्ट करते हैं। तो वी कैन लिस्ट दोज इंस्टीट्यूट इन दैट एरिया एज वेल, राइट। लोकल बिजनेस में जो ज्यादा चीज आपको सॉलिड रखने की, वो है आपका ऑन पेज बहुत सॉलिड रखने की। और जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, एक रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका बैकलिंक आप क्रिएट भी कर रहे हो और वो बैकलिंक बेसिकली अगर नो फॉलो है और आपने किसी कीवर्ड के ऊपर में क्रिएट कर लिया बैकलिंक, उस बैकलिंक का कोई भी वर्थ नहीं है, दुनिया के कितना भी मेहनत करके आप ले आओ। सिर्फ बैकलिंक जिनका आप डू फॉलो क्रिएट करो, क्योंकि डू फॉलो इज मींस कि वो वाउच कर रहा है, गूगल बोल रहा है कि भाई ये देखो यहाँ इस टॉपिक में ये चीज अच्छा है। नो फॉलो वाउच नहीं करता है, तो गूगल को ट्रस्ट नहीं जाता है, पूरा ट्रस्ट नहीं जाता। बट देयर आर वेज, आप नो फॉलो को यूज कर सकते हो, वो तो अलग डिस्कशन है। बट ध्यान रखना कि जितने भी आप बनाओगे वो आप अपना डू फॉलो की कीवर्ड का बनाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नो फॉलो लिंक पे कोई भी लिंक नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ डू फॉलो बनाओगे तो गूगल आप पे फुटप्रिंट पकड़ेगा और बोलेगा कि भाई ये तो हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचे कर देगा। तो यू नीड टू हैव अ मिक्सचर ऑफ सोशल मीडिया लिंक्स, नो फॉलो, डू फॉलो। और जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिंक्स के बारे में, आप लिंक्स तो बना लिए, लेट्स से आपने बहुत अच्छे लिंक बना लिए जिसका डीए एकदम 99 है, राइट, और डू फॉलो भी आपको मिल गया, लेकिन अगर वो लिंक इंडेक्स नहीं होता है तो अगेन उस लिंक का कोई भी वैल्यू नहीं। तो अपने जितना भी लिंक स्ट्रेटजी में एक प्लान ऐसा रखना है, एक ऐसा बैकलिंक रखना है जिससे आपका लिंक बहुत जल्दी इंडेक्स हो। मैं इसका तरीका ही बता देता हूँ, इसका तरीका बहुत अच्छा है और ये बहुत बदमाशी भी करती है एजेंसीज, कि उनको अगर काम दोगे ना तो वो सोशल बुक मार्किंग लिंक खाली बना के दे देंगे आपको, 50, 100, 200, 300, 400, राइट। बोले देखो हमने कितना काम किया, अरे एक बनाने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। सोशल बुक मार्किंग कर करके कभी भी कोई जिंदगी में ना रैंक किया है ना रैंक करेगा। ट्रैफिक कुछ आ जाता है, लेकिन वो भी ठीक है, आ जाता तो अच्छी बात है, बट रैंक नहीं करे। वो भी ट्रैफिक आपके एसईओ ट्रैफिक में नहीं गिनाएगा, वो रेफरेंस ट्रैफिक में, रेफरल ट्रैफिक में गिनाएगा, राइट। सोशल बुक मार्किंग को आप लोग एज अ टूल यूज कीजिए, जो टूल आपके लिंक को जल्दी इंडेक्स कर पाए। क्योंकि सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट है तो वहां पे लिंक्स बहुत ज्यादा है, तो वो एक जैसे कि हमने एक शहद का, एक चॉकलेट का टुकड़ा रख दिया, जो अगल बगल की हमारे घर में बहुत सारी ये चींटियां हैं, तो चींटी उसकी तरफ भाग के आ जाएगी। तो गूगल के लिए भी वो मैग्नेट है कि भाई यहाँ पे लिंक बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी मेरे क्रॉल को ज्यादा ये नहीं मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसको हम जल्दी इंडेक्स कर लेंगे, जल्दी खोज लेंगे। तो एसबीएम में फायदा क्या होता है कि आपके, अब लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट का एसबीएम करते हैं, लेकिन कभी अपनी बैकलिंक का एसबीएम नहीं करते, सोशल बुक मार्केटिंग नहीं करते, ट्रैफिक के लिए नहीं, उसको जल्दी इंडेक्स कराने, क्योंकि आपके पास में वेबमास्टर टूल का एक्सेस नहीं है हर बैकलिंक का, और बनाना भी इंसेनली पॉसिबल है वो। तो सबसे अच्छा चीज है एक प्रोग्राम बना लिए, 10-15 आपका जितने भी सोशल बुक मार्किंग है वहां पे आप डाल दिए सेक के लिए कि जल्दी वो हो। और उसमें एक पिंटरेस्ट जरूर रखिए, क्योंकि पिंटरेस्ट इज अ वेरी हाई वैल्यू वेबसाइट। और अपने बैकलिंक्स के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आप अपने मेन के लिए, मेन भी कीजिए, बट बैकलिंक्स के लिए भी कीजिए, राइट। तो ये एक प्रोग्राम आपको रखना है, और ऑन पेज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। ये मेरा एक जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझे अरबाब, और सही बात है आपकी, क्योंकि कई बार एजेंसीज जो ये करते हैं वो आपको भी पता है, और बेचारे क्लाइंट उसको नंबर के गेम समझकर उनको लगता है कि नहीं देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट दिस एजेंसी हैज पुट फॉरवर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ दिस इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट, तो वो एफर्ट भी कोई काम का नहीं रहता है। सो यस, एंड स्कीमा के लिए भी जो आपने कहा, आई टोटली एग्री विथ यू कि अगर आप नैक को भी फोकस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, और जस्ट सी टू इट कि आपका बिजनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्कीमा सिलेक्शन करें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है प्रॉपर्टीज है स्कीमा के, बस आपको सिलेक्ट करने की जो समझ है अगर वो होगी तो शायद आपका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे से होगा। सो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया अरबाब। सो गाइस, वी आर मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, और फाइनल क्वेश्चन हम अमित के और जाएंगे, क्योंकि अरबाब ने पिंटरेस्ट को पकड़ लिया है तो थोड़ा और बाकी के सोशल मीडिया की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि अमित आप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ट्विटर के ऊपर, खास करके
obviously on LinkedIn as well, and you have blue tick mark on Twitter as well as on Facebook, your Facebook page or profile, I think. So आप बताइए कि क्या आप कोई रोल सोशल मीडिया का अदर देन द ट्रैफिक एसईओ के अंदर देखते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो वैल्यू ऐड करता है आपके एसईओ के लिए, और आपका झुकाव किस सोशल मीडिया के और रहेगा? सो जानना चाहेंगे आपसे, और कुछ ट्विटर के लिए भी अगर आप उसमें ऐड ऑन करना चाहिए. सो बॉल इज इन योर कोर्ट, अमित. थैंक यू भौतिक जी, ये लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने. सब लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ क्या एसईओ और सोशल मीडिया का क्या रिलेशन है. तो यहाँ पे मैं ये सीधा सीधा ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता, वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. और ये बताना चाहूंगा कि उससे सीधा बेनिफिट नहीं होगा, बट जो आपकी लिंक्स है, जो आपका कंटेंट है, वो आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हो, बराबर, तो उससे आपको ट्रैफिक जनरेट करने में हेल्प करेगा. और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अरबाब जी ने बोला कि पिंटरेस्ट वाली जो बात बोली उन्होंने कि पिंटरेस्ट में शेयर करना मत भूलिएगा, वैसे ही बाकी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप उस तरीके से यूज कर सकते हो टू इंडेक्स इजीली इन दी सर्च इंजन. और मैं ये बोलूंगा कि ये इससे सोशल मीडिया अगर कर रहे हो और उस पे जो पोस्ट आप रेगुलरली एक कंसिस्टेंट लेवल पर कर रहे हो तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा सोशल मीडिया की ओर से. बट काफी सारे लोग ये करते हैं कि जब उनको जरूरत होती है तब सोशल मीडिया पर आते हैं. तो यहाँ पे मैं उन सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई ऐसे मत यूज कीजिए सोशल मीडिया को. अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर बेनिफिट ले आपको मिले सोशल मीडिया का, तो हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, विजिट कीजिए, उस तरीके से विजिट कीजिए कि जब आपको जरूरत पड़े तब आपको प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट उस पोस्ट पर मिल पाए, है ना. कई सारे लोग ऐसे कि भाई हमें तो एंगेजमेंट ही नहीं मिलता, बट वो वीक में या 15 दिन में एक बार आके पोस्ट करेगा तो भाई क्या मिलेगा तेरे को, है ना. हर रोज उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी जरूरी है. तो बस ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्टली काफी सारे बेनिफिट्स है. और आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हो वो इजीली इंडेक्स हो जाएगा. वैसा मैं नहीं अकेला बोल रहा, अरबाब जी ने भी आगे बोला पिंटरेस्ट के लिए. इसमें मेरा भी कुछ पॉइंट है, राइट? यस यस, हाँ जी बोलिए, ऐड कीजिए प्लीज. First of all, let's talk about social media, you being in social media, right? So social media का बिजनेस और होटल का बिजनेस सेम है. अब आदमी लोग पूछेगा भाई कैसे सेम है, राइट? टू डिफरेंट वर्टिकल, एक लोकल बिजनेस है, एक सोशल मीडिया है, वर्चुअल है. तो चूंकि आज का टॉपिक है तो ये एग्जांपल भी मेरे जहन में आया, तो मैंने बोला कि यही लोकल और इस पे जोड़ के देखते हैं, राइट? तो देखो, अगर लेट से मान लेते हैं कि तुम्हें किसी रेस्टोरेंट को कोई खाना पसंद है और तुम उस रेस्टोरेंट में जाके रोज कुछ खा रहे हैं, और सडनली एक दिन गए और उसके पास में बोले कि भाई मुझे वो खाना दो, लेट से छोले भटूरे पसंद है, छोले भटूरे दो. वो बोला भैया छोले भटूरे नहीं है, कल का बना है, खाओगे? तो आप बोलोगे बासी कौन खाएगा, लेकिन भूख तो लगी है, दूसरी जगह जाके खाओगे. फिर दूसरे दिन आए, क्योंकि फेवरेट है, सेकंड ट्राई दिया जाए अपने इसको, राइट? तो अब दूसरे दिन जब गए तो वहां पे फिर से बोला कि भाई बना तो नहीं है, परसों का है, वो खाओगे क्या? तो ये बोलेंगे भाई हम जो है नहीं, परसों थोड़ी कोई बासी खाएगा, राइट? तो वो कहीं दूसरे, भूख लगी कहीं दूसरी जगह जाके खा रहा, एंड वो शिफ्ट कर जाएगा कहीं दूसरी जगह. यही आपका सोशल मीडिया का कंटेंट के साथ में भी गेम है कि अगर आपको कोई कंज्यूम कर लिया है तो दोबारा आके फिर से कंज्यूम नहीं करेगा. चेक करेगा आपका प्रोफाइल आके, लेकिन दोबारा आके कंज्यूम नहीं करेगा. लेकिन चूंकि उसको कंज्यूम करना है तो कहीं और चला जाएगा. फिर उसके बाद दूसरी बार आएगा, तीसरी बार, चौथा, अंटिल वो शिफ्ट कर जाएगा. यही वजह है कि सोशल मीडिया में आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, ताकि खाना जो है बासी ना मिले लोगों को, राइट? बहुत बढ़िया बात बोली अरबाब जी आपने, बट कंसिस्टेंसी के साथ में किस तरह का कंटेंट आप शेयर कर रहे हो वो भी जरूरी है. वो भी जरूरी. लोगों को हेल्प कीजिएगा, यूजफुल कंटेंट शेयर कीजिएगा और हर एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहिएगा, तो आपकी बात जरूर बनेगी. और बस ये जो भौतिक जी का जो सवाल था उसका ये आंसर है. और साथ में आपको आपकी एक रेपुटेशन भी, ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो रेपुटेशन आपकी अपने आप बढ़ेगी, ब्रांड विजिबिलिटी बनेगी. लोग, अगर आप नए हो तो कुछ टाइम के बाद में लोग आपको एज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेंगे. बट ये सारी चीजें मैंने जो और अरबाब जी ने जो बोला वो आप कर रहे हो,
तो अदरवाइज वैसे ही आप फिर एक वीक में आओगे, कोई नहीं एंगेजमेंट होगा और वापस प्रोफाइल आपकी आइडल हो जाएगी, तो वो आपको नहीं होने देना है। आपको है ना? टेस्ट अपने जो यूजर उसका टेस्ट भी पता करके वही अच्छे खाने खिलाने, राइट। एक बार पता चल गया Yes, टेस्ट क्या, तो उसको खिलाना है। और इसमें अगर थोड़ा सा ना और थोड़ा सा सोशल मीडिया और एसईओ में भी आ जाए, तो देखो सोशल मीडिया एसईओ में सिर्फ ये बात नहीं होती है कि सिर्फ आप शेयर करो, ठीक है। आपके कोई कस्टमर है, उनको बोल दो भैया रिव्यू शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर उनके अकाउंट से रिव्यू जाएगा तो गूगल को क्या लगता है, या किसी अलग अलग ग्रुप में हो रहा है, अलग अलग प्रोफाइल से या अलग अलग आईपी एड्रेस से हो रहा है, तो गूगल को ये लगता है कि भाई अगर सोशल मीडिया में कोई चीज शेयर कर रही है तो ये कहीं ना कहीं यूजफुल है ये चीजों का। yes, तो गूगल उसको ना उसके ऊपर में ट्रस्ट देता है। इसका नाम है स्पेसिफिकली, इसका नाम है एसईओ में, इसका नाम है सोशल प्रूफ, नाम है इसका, सॉरी सोशल सिग्नल नाम है, सोशल प्रूफ नहीं, सोशल सिग्नल, यस। सोशल सिग्नल नाम है। तो ये गूगल बहुत पहले डिस्कशन हुआ था, आज से 6-7 साल पहले, सोशल मीडिया यूजफुल है कि नहीं, तब जाके ये टर्म आया था। यस, सोशल मीडिया बहुत अच्छा देता है। उस टाइम तो गूगल प्लस भी था, अब तो खैर दूसरे सोशल मीडिया बंद हो गए हैं, तो ये देता है आपको ट्रैफिक के साथ साथ में ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है कि अभी का जो ट्रेंड है वो ये है कि भौतिक जी ने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया तो मैं उसकी पोस्ट को क्यों लाइक करूं। ये तो एक साइकोलॉजिकल विरोधाभास हो जाता है, और ये बहुत सही बात है। हाँ, ये तो आपको कर्मा के तौर पर सोशल मीडिया पर रहना है, आपकी प्रेजेंस बनाए रखनी है। जैसे आप रिएक्ट करोगे वैसे लोग आपके साथ रिएक्ट करेंगे, और इसका फल आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता जाएगा। जैसे एसईओ और सोशल मीडिया की बात है वैसे। सो या दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच अमित। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसी अटेंडी ने लिंक्डइन की प्रोफाइल मांगी है तो हमने वो तो शेयर कर दी है। अदरवाइज यू गाइस कैन कनेक्ट विथ ऑल ऑफ अस ऑन एनी सोशल मीडिया। और जहाँ तक मुझे पता है हम चारों में से कोई टिंडर पर तो नहीं है, बाकी हम चार आपको और हर जगह पर मिल जाएंगे। तो आप कहीं पर भी हमें ढूंढ लीजिए, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो गाइस अब हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे, उसके बाद आई विल हैंड इट ओवर अगेन टू रेशमा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि हमें उसको बाद में हमारे जो कंपाइलेशन में उसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिसको टेक्निकलिटी इतनी समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं हर जगह पर पढ़ रहा हूँ, एंड आई थिंक 1 by 1 एक मिनट के अंदर आप सब लोग उसका आंसर अगर दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ पे हम अरबाब से शुरू करेंगे। तो अरबाब, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ, चाहे वो होटल का हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे कुछ भी बिजनेस हो, उनको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बहुत ही शॉर्ट में आप और अमित और विनय, आप तीनों अपने अपने पॉइंट्स स्टार्टअप्स के लिए अगर लोकली दे देते हो। सो ठीक है, तो देखो भाई सबसे सिंपल किसी बात है कि अगर आपको लोग जानेंगे नहीं तो आपसे खरीदेंगे नहीं। ये बहुत ही स्ट्रेट पॉइंट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो पहला पॉइंट जो आपका होगा, अपने बारे में अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे टूल हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप हो सकता है, लिंक्डइन ग्रुप्स हो सकते हैं, आपका लिंक्डइन हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। आप में भी किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ के बोलो कि भाई हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करो। एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, ईमेल मार्केटिंग हो सकता है, एसएमएस मार्केटिंग हो सकता है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, अपने दोस्तों को बोल दो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है अवेयरनेस करने के लिए। तो जब तक आपके बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक आपके बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन अवेयरनेस से पहले भी आपको अपना कम्युनिकेशन फाइंड करना है। देखो ऐसे तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हर चीज डिपेंड करती है, बट एक कॉमन चीज होता है, वो हम लोगों को बात करना है यहाँ पे। इस एक कॉमन चीज में 2 बातें होती हैं। पहला बात कि आपका प्रोडक्ट कोई क्यों यूज करे, क्या उसका पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है। पहला पॉइंट तो यही होता है कि सामने वाला आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करे, क्यों आप ही का क्यों यूज करे, दूसरे का क्यों यूज ना करे, राइट। इसमें इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट आ जाएगा, मे बी प्राइसिंग की वजह से, मे बी क्वालिटी की वजह से, मे बी डिजाइन की वजह से, मे बी XYZ जितना भी चीजें हैं उसके वजह से, राइट। तो कोई भी बिजनेस आप खोलो, जीवन में कोई भी बिजनेस खोलो, एक चीज का ध्यान रखना, यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन। द मोमेंट यू थिंक लाइक यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, आपका पूरा कम्युनिकेशन का तरीका और पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। बस इस एक पॉइंट से आपका चेंज हो जाएगा
कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, आप सॉल्व करने के लिए कस्टमर के तरफ आप चले जाओगे और आपका प्रोडक्ट में ही बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी। पहला चीज ये। दूसरा, अगर आपका प्रोडक्ट यूज कर लेता है तो उसके बाद उसको क्या महसूस होगा? क्या वो रिलीव्ड महसूस होगा? क्या उसको चैन मिलेगा? क्या उसको खुशी मिलेगी? क्या उसको गम मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या वो रोएगा? क्या होगा उसका एक इमोशनल रिस्पॉन्स? क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर अपने कम्युनिकेशन के अंदर में रखना है। दूसरी, अब इन सबको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का एक फीचर और बेनिफिट लिस्ट बना लीजिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है, तो आपको ये कार्व करने में बड़ा आसानी होगा, निकालने में बड़ा आसानी होगा, राइट। और एक और चीज है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है कि सामने वाला का दर्द आप समझो। आप जैसे कि मान लेते हैं कि पानी का बोतल आपने निकाला, तो पानी का बोतल क्यों निकाला? पानी का बोतल इसलिए निकला क्योंकि पानी का बोतल जो है, लोग सफर करते हैं तो वो ढोके पूरा बड़ा वाला नहीं गमछा ले जा सकते, तो वो 20 रुपए का। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया कि भाई हमको तो 20 रुपए की पानी की जरूरत नहीं, हम तो आधा पानी मेरा बेकार हो जाता, तो आ गया 1 रुपए का पानी का पाउच। देखो, प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन आए, राइट। तो आप इसका बेनिफिट कैसे कम्युनिकेट करोगे कि जैसे 1 रुपया पानी का पाउच आया तो आप स्वच्छ बोलोगे, सस्ता बोलोगे, राइट। किस तरह से आप उसको कम्युनिकेट करते हो, उसका बेनिफिट क्या कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये तो हो गया पहला स्टेज, अवेयरनेस एंड ऑल दोस थिंग। नाउ सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि हमारे पूरे डिजिटल मार्केटिंग में इट्स अ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। अगर आपके पास में डेटा है, देन यू कैन स्केल इट टू वेरी बिग नंबर। वो उसका कोई अंत नहीं है नंबर को स्केल करने का, ये डेटा पे। और थर्ड पॉइंट है आपको ऑप्टिमाइज करना। जो भी चीज आप करना स्टार्ट की है, शुरुआत से ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती, वो डेटा के बेसिस में ऑप्टिमाइज होगी एंड देन उसके बाद में स्केल होगी। एंड बहुत सारी चीजें लर्न, बहुत सारी चीजें अनलर्न भी करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। इतना आसान लगता है, मार्केटिंग वर्ड बहुत आसान लगता है, बट इतना आसान है नहीं, होता नहीं है। तो मैं आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो you can start from there, from awareness, then start collecting data, then start taking data driven decisions, and then start scaling. So ये मेरा 4 पॉइंट है, जो 4 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। Perfect. Very good, Anupam. Vinay, same question to you, if you are there, Vinay. Yeah. So I would say अगर आपका लोकल बिजनेस आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो इट ऑल डिपेंड ऑन द कैटेगरी, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आपका होटल है तो मेक श्योर होटल इज ऑलवेज फोटोजेनिक। गूगल माई बिजनेस इज मस्ट, आप उससे दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वही एक सर्च है जहां से आपको बिजनेस मिलेगा, कॉल्स मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। सबसे पहले जब भी आप कुछ करना चाहते हो, पहले आप अपने एज अ कस्टमर सोच के देखो कि आप वो इंडस्ट्री को कहाँ पे देख सकते हो। गूगल माई बिजनेस है, नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट फोटोजेनिक, देन इंस्टाग्राम है, यू हैव योर फेसबुक, ये चीजें हैं। तो आई वुड से अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ, अगर होटल है, देन दीज 3 प्लेटफॉर्म्स और मोर प्लेटफॉर्म्स, डिपेंड्स आल्सो ऑन कि आपका जो लोकल एरिया है वो क्या सर्च करता है, किसमें वो एक्टिव है ज़्यादा। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो लिंक्डइन में बहुत सारे, जैसे अगर कुछ बड़े प्रोफेशनल्स एरिया में आप हो और आप फेसबुक में टारगेट करो, इट वोंट आपका कोई फायदा नहीं होगा उसमें। इम्पोर्टेंट इज कि आपके जो टारगेट पीपल हैं, अगर आपका कॉर्पोरेट होटल है, यू हैव टू बी इन लिंक्डइन एज वेल एज गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, no matter what. If you have a local business, no matter if you don't have a location, if you have a location, you have to have a Google My Business account. Make sure to get the reviews. एक बार ये सारे चीजें आ जाते हैं, then your business would flourish like anything. Again, जब आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करो, एक और इंडस्ट्री में पकड़ता हूँ। एक तो हो गया फिजिकल लोकेशन वाली इंडस्ट्री, जो होटल। सर्विस इंडस्ट्री हो गई जो आप समझ लीजिए any locksmith, or if you are a digital marketer consultant, जो कि अमित जी हैं, so वहाँ पे भी you can have a Google My Business account plus your LinkedIn, क्योंकि वहाँ से those are all the professionals. Your Facebook is always there and your Twitter account. तो ये मतलब आपका क्या बिजनेस है, आप किसको टारगेट करना चाहते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस में ही आप प्लेटफॉर्म चूज करो। अगर आप सब प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट मेक श्योर टू स्टार्ट विद गूगल माई बिजनेस। थैंक यू।
Yes, perfectly said. You can start with the free and free. That is good enough to push your business at a very initial point of your startup. Go for GMB, Google My Business. It Yes, also gives a free website, so it's yeah, a beneficial for everyone. absolutely, absolutely. Yeah, Amit, over to you. मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको और जगह पे भी जाना है, हमें पता है. यस अरबाब जी और विनय जी ने जो चीजें थी वो सारी कवर कर दी है. ऑफलाइन जो था उन लोगों ने नहीं बोला, बट जो भी स्टार्टअप्स करना चाहता है, कुछ आइडियाज है, कुछ बिजनेस सोच रहे हैं वो लोग, तो मैं उन सब लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई खाली डिपेंडेंट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मत रहिए. आपको आप जो इंडस्ट्री में जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है और जिस आइडिया आप सोच रहे हो उसके रिलेटेड जितने भी लोग एक्सपर्ट्स है, थॉट लीडर्स है, उन लोगों से आप रूबरू मिलिए. उन लोगों से रूबरू मिलिए और उनके क्या ओपिनियंस है वो जानिए, उनके एक्सपीरियंसेस जानिए. और फिर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो कीजिए उनके एक्सपीरियंस और ओपिनियन के हिसाब से. और उसके बाद में जो अरबाब जी ने बोला वो, और उसके बाद में जो विनय जी ने बोला वो सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कीजिए तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है. और फिर भी दिक्कत आ रही है तो वी आर हियर टू हेल्प टू ऑल ऑफ यू, और जब भी आपको चाहिए तब हम लोग अवेलेबल है. यस, परफेक्टली सेड अमित. और यस, ऑफलाइन जो आप फिजिकली जो लोगों से मिलते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और गाइस, मैं भी कुछ यहाँ पर लास्ट में एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि दैट व्हेन यू आर डूइंग डिजिटल, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरनेट इज नथिंग जस्ट बट अ मीडिया. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन. अगर आप वो कनेक्शन बिठा सकते हैं थ्रू इंटरनेट तो आपको मार्केटिंग बहुत आसान लगेगा. बट इफ यू आर नॉट मेकिंग दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अगर आप बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, जिसको हम डिजिटल वर्ड बोलते हैं, चाहे वो आप वेबसाइट के कंटेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया के कंटेंट की बात कर लीजिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो कनेक्शन बना सकते हैं. फिर आई थिंक बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा. Thank you so much, all of you guys, because I think it's been a wonderful discussion. Amit, Arbab, and Vinay, I thoroughly enjoyed it. And as a panel moderator, let me क्या कहूँ, मुझे ये बताना चाहिए आज के ये हमारा 4th है. मैं हमेशा से पैनल मॉडरेट करता हूँ, बट आज मुझे बहुत मजा आया. शायद पिछले 3 साल टाइम से भी ज्यादा मुझे आज बहुत ही मजा आया है. मैंने बहुत ही एंजॉय किया है. आई थिंक पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं. तो आपकी सेकंड इनिंग तीनों की अब शुरू हो जाएगी कल, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन आप में डिवाइड कर दिए जाएंगे. और हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द आपसे वो आंसर्स ले ले और हम उसको कंपाइल करके एक खूबसूरत एक FAQ कैटेगरी में हम रखे, हम सबके अंदर बांट दे, ताकि हम एक जो अरबाब कह रहे थे, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाए सबके लिए. और वहां से भी वो लोग आपसे बाद में कभी भी कनेक्शन करना चाहे कर सकते हैं. और thank you so much all of you, and over to you, Reshma. Thank you very much. Thank you. It is good to see that हमने जब चालू किया था हमारे साथ 200 से ज्यादा लोग जुड़े थे और एंड तक हमारे साथ 200 से ज्यादा लोग जुड़े हैं. तो इट इज ग्रेट कि लोग सीखना चाहते हैं. Thank you to all the panelists and panel moderator for sparing your valuable time and giving us thought-provoking insights. I must say, इससे attendees को बहुत understanding आएगी the importance of search marketing for local businesses. I'm thankful to all the supporters for helping us in making this event successful. I'm also thankful to all the participants joining from different parts of the world for making this event successful. You all will receive a participation certificate in the next email. Also, we will mail the compiled question answer FAQ ebook in coming few days. So we shall take a leave with the hope of meeting next year again to celebrate 5th Digital Marketing Day with the same enthusiasm. If you have any further queries, you can mail us